you are very good listeners and you will follow the commands very well. So that's what. One thing, boss, I just cannot handle. Okay, I could probably the kindest person, but one thing I just can't handle is distraction. तो आप यहाँ हो तो 100% यहाँ रहो, दिल से दिमाग से, राइट? तो अगर आप नहीं रहोगे तो इट विल नॉट बी गुड. एंड लेट मी स्टार्ट. पहले तो अपोलोजाइज करती हूँ बिकॉज आई एम ओवर 2 hours लेट or 1.5 hours late. The reason being there was huge traffic. I was supposed to reach by any standards around 10:40, but then it took us quite a while. So sorry for that. And I will start with a tagline of mine, and I'll tell you my story briefly. Just quickly, we'll go through it and how anything can help you. Okay? So, yeah. If you have a smartphone and are smart enough in media skills, then the future is in your hands. Hello friends, I am Pratibha Chandran, a passionate journalist and equally passionate media educator. I, along with my husband, are on a mission to train 1 lakh people in smartphone filmmaking and mojo. We have already trained over 5,500 students. And let me tell you, last time when I was here, I had trained the staff of web portal of Bai Manus. I was here for almost 3 to 4 days completely, and I was so happy to train them because what level of success Bai Manus is getting is probably you all know, right? And they are all doing it on smartphone. Now understand, when I joined television, I was very happy. Do I have a permission to narrate my story? Yes. All right. So, I was very happy with my print media and like over 10 years of career in print, and I never had intended कि मैं टेलीविजन में जाऊंगी. अभी हुआ क्या कि टेलीविजन में मेरी एक दोस्त थी एनडीटीवी में. शी सेड, प्रतिभा, व्हाई डोंट यू वांट टू ट्राई टेलीविजन? मैंने नहीं करना है यार, मैं खुश हूँ. तो भी 1 साल कर ले, नहीं पसंद आया चली जा वापस. So like my generation had certain ethics, if my friends were in few of the channels, I never applied there. क्योंकि पंकज खेलकर who passed away last week 10-15 days back, he was with आज तक, तो मैंने आज तक को अप्लाई करने का चांस ही नहीं था. अद्वैत, one of my friend was with Z, मैंने नहीं किया. Venkatesh Chapalgaonkar, who passed away while covering elections, was almost like a younger brother to me. वो स्टार न्यूज में उसने अप्लाई किया था, जो अभी का एबीपी है. सो आई डिडंट अप्लाई देयर. मेरे लिए ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं थे. ईटीवी में ऑलरेडी बंदा था, तो मेरे पास में ऑप्शन था. एनडीटीवी में मेरी खुद की दोस्त थी, और इम्तियाज़ फिर ज्वाइन हो गया एनडीटीवी में. इम्तियाज़ ने अप्लाई किया था, इम्तियाज़ ज्वाइन हो रहा था, तो वहाँ भी नहीं. दरवाज़ा मेरे लिए बचा था दूरदर्शन का और सहारा समय का. दूरदर्शन में स्टिंगर चाहिए था, तो मैं स्टाफ वाली अच्छी नौकरी छोड़ के स्टिंगर क्यों लूँ, मैंने नहीं लिया. तो सहारा वाज द ऑप्शन लेफ्ट. और विनोद दुआ, आपने नाम सुना है, राइट? तो विनोद दुआ जी ग्रुप एडिटर थे सहारा के. आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम. आई कॉल्ड हिम एटलीस्ट 20 times एंड ही वाज फेड अप विथ मी. ही सेड, बॉस, नेशनल के लिए हमको कोई नहीं चाहिए प्रतिभा, क्योंकि हमारा रीजनल चैनल आने वाला है. मेरी तो कंडीशंस भी थी कि मुझे उनके साथ काम भी करना था, नेशनल के लिए ही करना था, और मैं अपना शहर भी नहीं छोड़ना चाहती थी. Okay, so he said, no, we don't want anybody for national. I sent him a list of over 20 stories and story ideas, what can be done. And he said quickly, he redirected me to the boss of our national channel, who was Arup Ghosh. And he said, okay, you can work with Arup. I started calling Arup several times. He never attended my phone. Finally, I told his PA, whose name was Asha ji, मुझे नहीं लेना है, मत लीजिए, बट सर को बोलिए एक बार मुझसे बात तो कर ले. सो पता नहीं यार, मैंने बोला ये अनएडिटेड मैसेज सर को बता देना. आई नेवर न्यू हिम. तो उनका 5 मिनट के अंदर कॉल आ गया और बोले आ जाओ इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू के लिए मैं गई, तो क्या हुआ कि उन्होंने पहले, उनको लेना नहीं था, उन्होंने मुझे बोला कि कैमरा पर्सन नहीं देंगे, कैमरा खुद करना पड़ेगा. करूँगी. दिस वॉज एट द एज ऑफ 34 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. करूँगी. कैमरा सीखा है? नो. कितने दिन का ट्रेनिंग लगेगा?
मैंने बोला 1 हफ्ता 1 week should be enough. That was by the way overconfidence. And then he said okay, how much salary will you take? And that was the biggest mistake of life I committed. You guys please don't do that. मैंने बोला this is my salary slip of लोकमत न्यूज़पेपर, इसके अबव आप जो देना चाहो. मेरी बेटी ने जब जॉब चेंज किया ना तो 200% है की, बिकॉज शी बार्गेन सो टफ. शी शोड हर स्किल सेट. ऐसे नहीं कि मेरे पास कम स्किल सेट्स थे, बट देन यू नो आई डिड नॉट हैव दैट सैलरी इन माइंड. आई विल टेल यू गाइज कीप दैट ऑल्सो इन माइंड, क्योंकि पहली आपकी एंट्री जो होती है आपका वर्थ समझो और उसको ये करो. बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज इन. तो मुझे फिर उन्होंने एक बड़ा कैमरा थमा दिया, ट्राइपॉड थमा दिया, कई सारी चीजें दी और बोला हफ्ता भर हमारे कैमरा पर्सन के साथ ट्रेनिंग ले लो और करो. तो ट्रेनिंग लेने के लिए क्या था तब, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस डेज, तो टेलीविजन में हम बड़ा तामझाम लेके घूमते थे. दैट तामझाम यूज्ड टू बी लाइक योर 4-wheeler with a huge tripod, then batteries, camera, crew, etc. etc. मुझे गाड़ी तो दी लेकिन कैमरा खुद करना था. सो दैट ह्यूज कैमरा, नॉट दिस हैंड, ये सब देके मुझे बोला कर लो आप. तो 8 दिन मुझे जो भी कैमरा पर्सन लेके जाते थे दिल्ली में मुझे उनके साथ में, आई रिमेम्बर कि वो मुझे बोलते हाँ मैडम देख के कर लेना. तो मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, रोल कट के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है. और तब तो इंटरनेट यूट्यूब पे कोई लेसन्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था ऐसे कि आप सीखो. 4 दिन के बाद मुझे खेल समझ में आया, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि रिपोर्टर्स कैमरे करेंगे तो हमारे तो जॉब ही खा जाएंगे, तो क्यों ही देना है. फिर मैंने एक शर्मा जी करके हमारे सीनियर कैमरा पर्सन थे, उनको पकड़ा और मैंने बोला सर मुझे सिखा दीजिए. मैं लगभग उनके पैर पकड़ने को तैयार थी. तो उन्होंने मुझे 1-2-3 दिन जो भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी है वो दी. एंड देन मुझे कैमरा यूनिट के लिए साथ में आए. आई डिड नॉट नो व्हाट इज XLR, आई डिड नॉट नो व्हाट आर द कनेक्टर्स, आई डिड नॉट नो व्हाट इज BNC. ये सब गिर पढ़ के खुद सीखा. कितना रोल करना है नहीं पता था, कितना कट करना है, कितने शॉट्स लेने हैं, बी रोल्स क्या होते हैं, ए रोल्स क्या होते हैं, नेट साउंड क्या है, नथिंग एट ऑल. बट 1 साल खुद करने के बाद में, खुद सीखने के बाद में मैंने गलतियां की, लेकिन कोई गलती नहीं दोहराई. ओके, एक गलती एक ही बार की. तो वो सीखने के बाद में देन आई थॉट कि डूइंग कैमरा वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ, बिकॉज एक कैमरा का सेंस जिसे आता है वो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है. कंटेंट इज द किंग, बट यू नीड टू नो द टेक्नोलॉजी. थैंकफुली आई गॉट टू लर्न वर्किंग इन अ ब्यूरो, द VSAT to lease line to your live view units to the FTP to everything, because 5 stages of production are there which we are going to learn. Now coming to this, हमारे पास में कैमरा था, 6-7 लाख का कैमरा लेके घूमते थे. ट्राइपॉड बड़ा होता था, बैटरी ही मेरी 6 किलो वजन वाली थी. एंड दैट एवरीथिंग नाउ comes on this phone which has a 4K quality, and that is why I love Mojo. So what happened is, putting in the experience and the storytelling and everything, जो भी सीखा वो सारा मोबाइल में है. So I developed this module of Mojo, and for those people who want to just create, they don't want to be journalists exactly, but want to be visual storytellers, उनके लिए मैंने एक स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग ये कोर्स बनाया. Now why Mojo? Because it is cheaper, it is very available at all point of time, accessible, and आपको हर कुछ इसी में कर सकते हो. You don't need so much of an investment, and your generation is never ever going to get cameras anymore, because NDTV shifted on Mojo. BBC does not use camera at all. BBC का सारा काम केवल मोबाइल फोन पे होता है. Now we are running, I am now a multimedia editor for Navbharat Group, and I do not use any camera. We do it all multicam setup on Mojo. So we are going to learn how to create entire content on mobile. Thankfully my unit is also there for the election coverage. तो कल मैं आपको पूरा लाइट से लेके सब सेटअप जो है वो आपको समझाया जाएगा. ठीक है.
Now let me ask you, how does your visual story start? फर्स्ट स्टेप क्या है विजुअल स्टोरी का? यस, हु सेड समथिंग? एंकर, ओके, और स्क्रिप्ट, ओके, और एनीथिंग? हाउ डज इट हैपन? फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट? समरी 4 सेकंड मध्ये समरी स्टार्ट होते. आई एम पुटिंग यू इन अ ग्राउंड जीरो सिचुएशन. ओके, आई एम टेलिंग यू कि आपको स्टोरी करके लाना है. स्टोरी आइडिया क्या है आपका? मैम, हाँ, सेट, हमें एक पर्टिकुलर सेट या प्रीमाइस पे जाना होगा विजुअल्स के लिए. कौन से प्रीमाइस, कौन सा सेट? मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. इफ मेरी एक स्टोरी है वॉर पे, अगर मेरे को वॉर कंडीशन, वॉर सिचुएशन पे जाना है, देन आई विल गो टू लद्दाख और कारगिल एरिया. Okay, or okay, I want to start with all the stages, but I want the answers from you. Content. What do you mean by content? रेसिपी बनाना कंटेंट है, राइट? है ना? साड़ी ड्रेप करना कंटेंट है. व्हाट कंटेंट? एज अ जर्नलिस्ट, थिंक एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट कंटेंट? व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट विथ फर्स्ट? स्टोरी का क्या सब्जेक्ट है? Okay, tell me one subject. Yeah, tell me one subject. Any subject, it can be anything. Yeah. Politics. Politics में क्या? Election में क्या? एक मिनट, let us come from politics. Election में क्या? कौन सी रैलीज? हाँ, कौन से शहर की? किस शहर की रैली? नागपुर की रैली. नागपुर में दिन में 5 रैली हो रही है. कौन सी रैली? नितिन गडकरी. कौन सा एंगल? आर यू गेटिंग इट? सारा वेग है आपके दिमाग में. स्टोरी आइडिया बताओ. माय एडिटर यूज्ड टू आस्क मी, आई वर्क विद सो मेनी फिनोमिनली गुड एडिटर्स. पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम सुना है? प्रसून बोलते थे कि एक लाइन में स्टोरी अगर मुझे नहीं बेचते हो तो आप दर्शकों को कुछ नहीं बेच पाओगे. Okay, so one line story is very important. Now नितिन गडकरी की रैली क्या है? रैली में क्या कवर करना है आपको? I am bringing you to the one liner story. Yeah, शक्ति प्रदर्शन. Okay, so if at all you want to do a story on Nitin Gadkari's rally in Nagpur constituency and you want to show शक्ति प्रदर्शन यानी उनकी strength, visual thinking. So what is important is specific is terrific. Understand? Specific is terrific. You have to be very specific as to what storyline you want to show. सबसे पहला आपका है एक पिन पॉइंटेड आइडिया. और टेलीविजन स्क्रिप्ट का जो रूल है उसमें the most important rule is do not clutter your story with too many ideas at a time. आप पॉलिटिक्स पे स्टोरी करना चाह रहे हो, कुछ नहीं है आपके हाथ में, बोलेंगे रद्दी में डाल दो. इलेक्शन पे करना चाहते हो, इलेक्शन क्या है? पूरे देश भर में इलेक्शन हो रहा है, क्या स्टोरी करोगे? नथिंग. रैलीज पे करोगे, क्या है? यू हैव टू चूज वन माइक्रो आइडिया एट अ टाइम फॉर वन स्टोरी. इज दैट क्लियर? Now 2 minutes and I'm giving you to think and give me one line idea of a story. Okay, just we will start with there, right? One line idea of a story. 2 minutes, just think and I'm asking you. Each one of you, I can randomly come to anybody. एक लाइन में बताओ क्या करने वाले हो. Can you give us example so that we can understand? Okay, I'll give you. Good question. I'll tell you. मेरे पास में आपको स्टोरी मिलती कहाँ से है? स्टोरी आइडिया कहाँ से आता है? ओके, मेरे पास में एक ईमेल आया था और वो ईमेल में योर इनबॉक्स इज फुल. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट
एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू चूज आउट ऑफ दैट, और स्टोरी का पोटेंशियल क्या है. सो वन पर्सन कॉल्ड, हिज नेम इज हेमंत कुलकर्णी. He sent an email and he said that they have done a survey in Sangamnagar and Akole तहसील्स ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और उनको पता चला है कि ये दो ही तहसील में किसान के परिवार के 3000 लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है. अब ये मेल सभी अखबारों को गया. इस मेल में मुझे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखा. ओके, आई टोल्ड लाइक यू ऑल वर टेलिंग कि इलेक्शन पे स्टोरी करना है, तो मैंने मेरे एडिटर को बताया कि मुझे स्टोरी करना है कि एक दो तहसील में ऐसा ऐसा सर्वे हुआ है और ये कोई लेगा ये स्टोरी, कोई लेगा? हाँ, इफ आई टेल यू लाइक दिस कि हाँ एक सर्वे हुआ है किसान परिवार का, उस पर स्टोरी ये करना है. नाउ माई स्टोरी वॉज रिजेक्टेड, मत करो. मैंने सोचा यार इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग लॉजिकली दैट इफ एट ऑल जस्ट दो तहसील में ये हाल है कि 3000 बच्चे हैं जिनकी उम्र 25 से 35 है, किसान परिवार के हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है, उनको लड़की नहीं मिल रही है. आई फाउंड अ बिग इश्यू आउट ऑफ दिस. और मुझे लगा फिर महाराष्ट्र में कितने हो गए, आराम से 5 लाख 6 लाख तो हो ही सकते हैं ऐसे युवक. सो वही स्टोरी मैंने अगले दिन बताई जब हमको रोज फॉरवर्ड प्लानिंग आइडिया बताना था. आई टोल्ड कि सर मैं एक स्टोरी कर रही हूं, खेती-हार को दुल्हन नहीं. ओके, खेती-हार को दुल्हन नहीं. वो स्टोरी आइडिया एकदम ये हो गया, राइट? एंड व्हाट दे डिड इज, प्रतिभा इस पे आधे घंटे स्पेशल बन सकता है. सेम स्टोरी सेम ये. नाउ ये हुआ पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक स्टोरी आइडिया. अभी आप आपका सब्जेक्ट चुनो, हम 2 या 3 आइडियाज लेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू चूज द सब्जेक्ट, थिंक विजुअली, देन आई एम गोइंग टू शो यू लॉट्स ऑफ थिंग्स कि कैसे करना है, कंपोज कैसे करना है. पहले हम कंसेप्ट से शुरू करते हैं, बिकॉज देर इज अ 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ मोजो स्टोरी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आइडिया. You should have one line idea of a story which is very specific कि उस पर आपको स्टोरी करना है. देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा वो हम सोचते हैं. चलो 2 minutes, आई विल आस्क यू थिंक एंड टेल मी अ स्टोरी आइडिया. ओके, या quickly. I am not a kind of a person who will just be there on the podium. Yeah. Any story ideas? करोगे? How will you present a story visually? सर मैम एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली गवर्नमेंट की नौकरी के लिए जॉब अप्लाई किए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं. Okay. तैयारी करते हैं साल भर, लेकिन पेपर लीक हो जाता है. फिर कितने हैं जो 5-5 साल तुम्हारी पेपर लीक पर स्टोरी है कि यूथ इज जॉबलेस पर स्टोरी है? ये सारे रीजन की वजह से वो जॉबलेस हो रहे हैं. हम जाके एक बात समझ में आ गई सबको? हाँ, गुड, यू एटलीस्ट यू स्पोक. आप स्टोरी बताइए. हाँ, काय आहे पाटोदा, काय आहे काळं सत्य? आदर्श गावाचा पुरस्कार घेतलेला आहे. बर. आणि तिथे त्या गावामध्ये सगळ्या सुविधा आहेत, पण तिथे एक साधं आरोग्य केंद्र नाहीये. तर मग Okay. त्याच्यावरती आपण स्टोरी करू शकतो. ओके, अजून गुड. आय एम ऍटलीस्ट एन्जॉयिंग दॅट यू ऑल आर स्पीकिंग. ओके, या एनीबडी? या मैम लास्ट ईयर जब आईपीएल का सीजन चल रहा था या तो मेरे एरिया में पुलिस ने 2 अंडर एज बच्चों को पकड़ा जो सट्टा लगा रहे. ओके, कैन यू इमेजिन द प्राइस? उन्होंने एक आईपीएल की मैच पर अराउंड 5000 का सट्टा लगाया. एंड दिस इज द स्टोरी कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग इज बिकमिंग द
part of Satta for the youth. Okay. But the thing is कि youth 5,000 लाख हासिल है, हर मैच में पैसा लगता है और इंडिया में ऐसा illegal सट्टा कितना है? Okay. So, okay, that can be specific story. आपने जो बताया यूथ वाला, उसमें आपके पास में आइडिया है जॉबलेस यूथ, बट यू विल हैव टू फाइंड अ माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ इट कि कहाँ का, अगर आप किसी कॉलेज में कहाँ से स्टोरी शुरू करोगे. सो वन थिंग इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू आर हैविंग वन लाइन स्टोरी आइडिया. दैट वन लाइन कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ खेतीहार को दुल्हन नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ फार्मर सुसाइड, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रॉप का पैटर्न, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ MSP. कुछ नहीं, कुछ नहीं. I have to have one clear cut story idea. Only then my story will be good, visually good. आप उसमें 10 चीज घुसाओगे तो वो हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हो, राइट? तो हमें कहना क्या चाहते हो वाला सीन नहीं चाहिए. अनदर थिंग, दो वी आर डूइंग मोजो, आप में से कोई भी फोन नहीं देखेगा. जिनको फोन देखना है बाहर जाके देख लीजिए. अनलेस आई आस्क यू, प्लीज डोंट. लेट अस हैव इट मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन. आपके लिए अगर टेक अवे नहीं है तो मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पर आकर बात करने के लिए काबिल नहीं हूँ. इफ दिस डज नॉट इंटरेस्ट यू तो वो मजा नहीं है, राइट? प्लीज डू नॉट. आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ थिंग ऑन सेल फोन, बट ओनली व्हेन आई टेल यू. ओके, बी 100% हियर. ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड, वंस यू गेट वन लाइनर स्टोरी आइडिया. चलिए हम अपनी खेतीहार वाली स्टोरी पे जाते हैं फिर से. देन आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग विजुअली. तो दूसरा स्टेप आता है. फर्स्ट थिंग समझ में आ गया आपको, एक छोटी आइडिया जिसकी आप स्टोरी बना रहे हो. नाउ दैट गर्ल टोल्ड मी कि वो पाटोदा, राइट? पाटोद्याचे काळे सत्य, ठीक है, दैट इज अ हेडलाइन. दैट दिस इज अ आदर्श गांव है, लेकिन यहाँ पे वास्तविकता ये है कि आदर्श गांव की व्याख्या में अगर आपके पास में कोई अस्पताल नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर ही नहीं है, तो काहे का आदर्श गांव? बिकम्स अ गुड स्टोरी बाय द वे. ओके, नाउ वंस यू फाइनलाइज योर स्टोरी आइडिया, देन नेक्स्ट स्टेप कम्स व्हाट? यस, visualize it. Okay, for that data collection, fantastic, that is research. The second thing immediately comes is your research around your micro topic. और रिसर्च इतना पिन पॉइंटेड होना चाहिए कि आपने जो स्टोरी आइडिया चुना है वो स्टोरी आइडिया के इर्द गिर्द ही आपको सारे फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट करना है. नाउ व्हेन I got the mail of खेतीहार को दुल्हन नहीं, which I found an one-liner idea. I had a sample survey which was in just 2 तहसील्स. I contacted the surveyors और मैंने उनको पूछा कि महाराष्ट्र में क्या है सीन. तो उन्होंने बोला 6 से 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो they are in the age bracket of 25 to 35 and unmarried, क्योंकि लड़की नहीं मिल रही है. देन यू कम कि क्यों नहीं मिल रही है, राइट? क्यों नहीं मिल रही है? द रीजन बीइंग, आज गर्ल्स आर एजुकेटेड, दे नो मोर वांट टू. खेत में, खलिहान में, गोठों में कौन काम करेगा? नंबर 1. नंबर 2 इज देयर इज नो assured guarantee of a assured income guarantee in to the farmers, क्योंकि जमीन कम कम होते जा रही है. देन मौसम है, कर्जा है, ये है. देन द सेकेंड थिंग कम्स विथ योर रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन अराउंड इट. ओके, एंड एक लड़की के लिए एक उबर या ओला वाला जो ड्राइवर है, हु कैन ब्रिंग इन इनफ मनी इन एट द एंड ऑफ द डे, or at least little money at the end of the day, she feels it better than a खेतीहार कि अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा तो ठीक है. Okay, so that is another thing. So listing out all these things, and then comes your conclusion. Now when you start collecting your research and data, then you have to think. So your first and foremost step is idea, right? Having idea, specific idea of a story.
which you can sell in one line to your editor first and then to your viewers. Is that clear? आज के दोपहर के बाद में मैं आपको कल जब आप आने वाले हो, I want 10 story ideas from you, which are one liner story ideas. You will think उसमें आप विजुअली कैसे ट्रीट करोगे. जैसे ही आप when you think about these things, then comes your budget. कि बजट क्या है मेरा, because for every story you have some budget. कहाँ जाना है, क्या शूट करना है, लोकेशन है, किसको कांटेक्ट करना है. सो यू विल हैव अ प्रॉपर लाइनअप अलॉन्ग विद बजट. योर बजट वुड बी, आप वहाँ ट्रैवल करके जा रहे हो, आपका वॉट एवर. सो दैट ऑल्सो कम्स इन प्री प्रोडक्शन. सो अंडरस्टैंड योर ईच टेलीविजन प्रोडक्शन और ईच स्टोरी प्रोडक्शन इज इन 3 stages. प्री प्रोडक्शन में आइडिया, रिसर्च, budget, transport, proper lineup, everything. Then comes your production. Okay? What is E? So once you collect the data, have you heard the word called ENG? What is ENG? चलो wild guesses करो. What is ENG? हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, विच इज आवर टॉपिक. यू कैन चूज एनी लैंग्वेज. ओके, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बिकॉज दीज 4 languages I surely understand. Okay, so what are we talking about, and then what is ENG? Ma'am, Yeah, it's ENG. I do not know the full form, but it revolves around some gases like petrol, diesel, CNG. okay, that is CNG. All right, no worries, nobody is going to laugh, at least he's tried to speak. Okay, हम लोग बात किस चीज के लिए कर रहे हैं? What are we talking of? What is going to be our final production? Story. What story? Somebody said visual story, right? You are right. So that visual story production process is called ENG, that is electronic news gathering. Okay, it is electronic news gathering. That means going on the spot and shooting your story. It's nothing but ENG is a process. Now that is production stage. अब production के लिए क्या क्या लगता है? Production के लिए what all the things you need? Camera, mic, tripod, या अभी तो आपको 1 man army रहने वाले हो आप. ओके, यू आर गोइंग टू बी एवरीथिंग. या देन लोकेशन. ओके, और ट्रांसपोर्ट. ओके, और कैमरा, माइक, ट्राइपॉड. इसके अलावा क्या? What do you capture when you capture any photo or video? What do you capture when you capture any photo or video? Yeah? People, I mean audience. Okay, I'll give you an example. If we shut all these lights, you all are sitting there. There are people. You capture light, understand? If there is no light, you cannot capture anything. Whenever you are capturing any photograph or a smallest of a video clip, what is the basic requisite is a light, right? So whenever you are capturing any video, so you actually are not video shooting. Nobody of us are video shooting. Okay, we are just capturing 24 to 25 photo frames in a second, which we feel that is a video, but it is actually a series of photographs. Okay, and now there is something called FPS. You might have seen in your here, right? Frame per second. So your phone capacity is so much enhanced now
that it goes up to 60 fps in some of the phones. Okay, frame per second. So the clarity actually goes on a higher. So we are going to learn too many technical things, but I am not going to confuse with you with too many things at a time. I'll make sure that you understand everything. Okay, so due to consistency of vision, because we see something and the impression remains in our brain for a fraction of seconds, though we are watching series of photographs, we feel that हम लोग वीडियो देख रहे हैं. Okay, there is something called FPS. आपके फोन में हर सेटिंग बताऊंगी मैं आपको. So you are capturing light. So light is important, audio is important, and of course photograph or video is important. Right? ये तीनों चीज का आपको ध्यान रखना है. And how many photographs, how many shots, how many seconds you should roll, that everything has a good set SOP. And if you follow SOP, standard operating procedure, you will be quickly doing your story. Okay, so going on the field, considering light, sound, video with good composition, having enough number of shots, having enough number of A rolls and B rolls, audio rolls and background rolls. Audio rolls are your interviews. Sound, nat sound क्या है, nat sound कैसे होता है, वो भी बहुत important है. So this entire process is called your ENG in terms of news gathering. In terms of smartphone filmmaking, it is production. Okay. So both are parallelly same. We will just learn both. And then comes post production. So first is idea or concept. Second stage is your research. Okay, and your budgeting, that comes in pre-production stage. Actual production is when you go and do your ENG, electronic news gathering process. मतलब वहां पे जाना है, सारे इक्विपमेंट लेके जाना है और शूट करना है. And then you will have your post production, that is editing, doing voice over, adding background score or music, sound. Then after that adding some effects, and after that rendering your thing and delivery. Right, rendering होने के बाद में which platform you are going to deliver it for. So ये 5 stages में आपको सोचना है: idea, research, ENG, post production, that is editing, and 5th is your delivery. Now no more you are going to enjoy having a camera person, no more you are going to enjoy having a OB engineer. ये तामझाम के साथ में आपको अभी जाना नहीं मिलेगा. You are going to be treated as one person army. And if you want to be industry ready, you have to be really ready for it. बच्चों के दिमाग में बहुत भ्रम होता है. अच्छे रील्स बनाते हैं कुछ बच्चे, उसमें they get some good traction and they feel मुझे तो सब आता है. जो आप वो करते हो, वो स्टेंसिल हमने बचपन में सीखा था, जो स्पाइरल जैसे आप सबने स्टेंसिल सीखा होगा. ये रील्स बनाना, ये शॉर्ट्स बनाना, ये सिर्फ स्टेंसिल है, ये आर्ट नहीं है. बिकॉज यू हैव अ टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट में आप कोई भी डाल दो, आपका दिमाग नहीं है उसमें. अरे व्हाई रवीश कुमार बिकम्स रवीश कुमार or why someone else becomes what they are is because they know the art of storytelling. They are very good visual storytellers, and that is what, if you are going to stand out, because your content has to be rich, your treatment has to be good, your editing has to be good. अभी क्या है, टेम्पलेटेड आता है आपको, क्विक, ये वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड पीपल फील कि हाँ मुझे एडिटिंग आता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेल मी मुझे एडिटिंग आता है. आप में से कितने लोगों को एडिटिंग आता है? सबको ही आता है, राइट? यू डोंट नो एडिटिंग? हाँ, नहीं आता है. जिनको आता है वो कहाँ एडिटिंग करते हैं? DaVinci पे करते हैं. ओके, इट्स अ वेरी गुड स्टेबल सॉफ्टवेयर.
कलर ग्रेडिंग से सब कुछ है उसमें, राइट? बट वी हैव टू डू इट ऑल. दा विंची कितना हेवी है? हाउ हेवी इट इज? It is a very heavy software, right? Because it slows down your system quickly. आप अभी दाविंची पे काम नहीं करोगे, कहीं आप न्यूज पे जाओगे तो, राइट? बिकॉज यू डोंट हैव टू टेक इट एवरीथिंग ऑन द डेस्कटॉप. ये और आप में से कई लोगों को जैसे ही दाविंची ये किया है, वर्क ऑन दाविंची, तो व्हाट हैपेंस इज इमीडिएटली आपका सारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है. होता है कि नहीं होता है? Right? We have to do all on phone. And that is what? Quick editing, quick reporting, but doing with style and knowing the technique well is what you are supposed to know. Okay? Now let us start with your camera. पहले आपका फोन अब ओपन करो. Now all of you will open your phone. फोन कैसे पकड़ोगे? शूट करने को बोलूं मैं तो? ओके, ऑल राइट, ओके. नाउ आई वांट एवरीबडी, ओके, या, ओके. फर्स्ट स्टेप क्या है? वीडियो पे जाना है. ओके, सबसे पहली चीज, या, सही से फ्रेम ले. I'll tell you everything. I will tell you everything. We will know the settings. We will know the camera apps. We will know the editing apps. So, first and foremost, जो आपको हर बार करना है, आप में से कई लोगों के पास चश्मा है, मैंने देखा. जो नहीं पहनते हैं वो सॉफ्ट क्लोथ जो चश्मे का आता है वो लेना है. And first and foremost is clean your lens. Each time you shoot. Each time you shoot. Because where do you keep your phone? फोन कहीं पे भी रखते हो. मैंने यहाँ रखा था अभी, राइट? हम खाना खाते हैं, फोन रखते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड योर स्क्रीन इज रियली डर्टी. डोंट यू फील? हम लोग कहीं पे भी फोन लेके जाते हैं. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ईच टाइम यू हैव टू क्लीन द एंटायर लेंस बिफोर यू स्टार्ट योर शूट एंड यू विल सी द क्वालिटी. आप अभी फोटो निकालो, जैसे ही फोन कभी भी उठाते हो फोटो निकालो. एंड सेकेंड is just clean the lens and take the same photo. You will feel the difference, because there are too many micro particles which are on your lens which need to be cleaned. ठीक है? That is first and foremost. Now second is, यहाँ पे भी करना है आपको clean, हाँ? Second is, as soon as you start, open your camera. Okay. Open your camera, go to video. What do? You start rolling, right? कहीं पे भी जाते हो रोल करते हो. So how do you roll? Correct? Then next, how many seconds? 5 to 6 seconds. Okay. Next, once you roll for 5 to 6 seconds, what do you do next? Pause. Play and pause wala button, right? You pause it here. So always use this play and pause button. Roll anything for 6 seconds, 5 to 6 seconds, क्योंकि 3 या 4 सेकंड का शॉट लगता है. आपको कट करने के लिए आगे पीछे होना जरूरी है. 2.5 मिनट, 2.5 to 3 मिनट्स के लिए आप ये करोगे, right? And then you will go and have another frame, and then you will roll and cut. So first and foremost thing is using a play and pause button while shooting the thing. The reason being, if you just do this, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी 5, 6, 7, 10 सेकंड की, and you will have like 100 files of one story. अब कंटिन्यूटी ब्रेक होने का चांस है. करेक्ट? सो फर्स्ट इज यू हैव टू ऑलवेज यूज दिस एस्पेक्ट रेशियो. 16:9 वाला जो एस्पेक्ट रेशियो है,
इसी में शूट करना है, बिकॉज दिस कैन बी यूज फॉर एनी प्लेटफॉर्म. This can be used for any platform. Even if you want to make a reel or short out of this, you can make it. लेकिन आपने ये शूट किया तो you cannot use it for YouTube, right? Because फिर वो एकदम 1/3 of the screen edit में कैसे दिखता है, you all know, right? अभी second thing is you have to always give and think of a steady shot. Steady shot. Steady shot देने के लिए what you should be using is ideally use a tripod. Gimbal आगे की बात है. Yeah, of course gimbal. Okay, use a tripod for stability. Then अगर आपके पास में tripod नहीं है और आपके सामने कोई बड़ी स्टोरी हो जाती है, you have to give still a stable shot. Always have one technique of standing is stand like this. Have a gap in your legs. जब आप ऐसे खड़े रहते हो तो you are steady. आप यहाँ खड़े रहते हो, you don't understand, these are very small things. लेकिन आप जब इस तरह से खड़े रहते हो तो ब्रीथ के साथ में आपका बैलेंस थोड़ा ये होता है, and you are not going to get a steady shot. आपको लगता है steady, लेकिन वो एडिट पे बैठोगे तो आपको पता चलेगा हिल रहा है. If you are not having a tripod, ideally have a tripod always. This is number one. If at all आपके सामने शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं, नितिन गडकरी कर रहे हैं, आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? You will use like this. Okay. You can just stand and you will get a stability. Stability. So first thing is do some jugaad to give a stable shot. For stable shot you have to do some jugaad कि कैसे मैं stable shot दे सकती हूँ या दे सकती हूँ. Another thing is having a camera on eye level. Eye level पे camera, because camera angles, camera types of shots, everything we are going to learn. So did you understand? The first and foremost thing every time you have to do is clean your lens, have 16:9 aspect ratio. Third is giving a steady shot with tripod. Tripod इतने छोटे मिलते हैं कि tripod now you get it actually for 200-250 rupees से अच्छा tripod मिलना शुरू हो जाता है, up to like n number of things. Okay, and then you have to, once you start shooting, you have to look at light. जहां जहां सिचुएशन आपके हाथ में है वहां लाइट कैसे देखा जाता है? Do you know how do you see light? How do you check light? कैसे चेक करेंगे लाइट? आपको मैंने बोला कि आप जाइए और रील करिए. लाइट कैसे चेक करोगे अगर आपको नेचुरल लाइट में शूट करना है? सनलाइट डायरेक्ट करना है, कैसे करोगे? कहां पे खड़े रहोगे? हाउ विल यू चेक दैट? पोजीशन ऑफ द सनलाइट. हाँ, सामने से आ रहा है तो ओके. सो ओके, हाउ डू यू चेक इट? स्टिल इज ऑन योर palm. You should check your light on your palm. Okay, palm. हर कोई प्लीज look at your palm. Look at your palm. 360 डिग्री उसको घुमा के देखो. palm ऐसे ऐसे I love that. Wonderful. चलो, हमारा आपका नाम? अशफाक. अशफाक के लिए 3 तालियां. ओके, तो हमें देखना है कि लाइट कहाँ है. इफ यू आर शूटिंग ऑन अ नेचुरल लाइट, नाउ व्हेन आई सी दिस इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट, सो मुझे अगर बोला गया कि यहाँ से लाइव दो या यहाँ से कुछ करो, मेरे ऑफिस ने बताया, तो आई टेक दिस लाइट. आई सी ओ दिस इज ब्राइट. सी ड्यूरिंग कोविड आई यूज्ड टू डू लाइव फ्रॉम माई बालकनी, घर का बालकनी. तो मुझे सवेरे के बुलेटिन को जब मैं लाइव करती थी तो मैं कहीं और खड़ी होती थी. जब दोपहर में मुझे करना है तो आई स्टैंड समवेयर एल्स.
Okay, because I have to see light. शाम में करना है तो I have to use light, external light. Light is very important. और लाइटिंग का टेक्निक क्या है वो भी हमें सीखना है कि लाइटिंग का टेक्निक क्या है, where and how much light should be used, because light is going to make the entire difference in your quality. मोबाइल पे शूटिंग करते हुए, मोजो पे शूटिंग करते हुए लाइट अगर कम हुआ तो पिक्सल दिखता है, you cannot really edit the frame well. So appropriate lighting is very important while you are shooting for mobile, shooting on mobile. Okay, so look at light, and one thing I'll tell you, कि golden light, there is something called golden light which should be used, which is a early morning light. जब आपके प्रोडक्शन हाथ में है, it will not be possible all the time. When you are shooting your story, get up at the earliest possible time, laziness छोड़ दो, और अर्ली मॉर्निंग लाइट में अगर खुद के भी फोटो निकाल के देखो, कल एक अच्छा एक्सरसाइज करो, खुद का एक फोटो अर्ली मॉर्निंग लाइट में निकालो, इट विल यू लुक सो ब्यूटीफुल. ओके, या इवनिंग का जो ट्वाइलाइट जोन होता है वहां पे भी आप अगर शूट करोगे, मुझे अगर प्रोमो शूट करना है मेरे चैनल के लिए, तो व्हाट आई ऑलवेज डू इज आई चूज इट अ वेरी अर्ली मॉर्निंग लाइट. ओके, वहां पे बहुत आप अच्छे लगते हो. यू नो, आई हैव माई so many anchors. अगर आप उनको कहीं और मिलोगे तो आपको लगेगा, ओ इज दैट द सेम पर्सन जिसको मैंने स्क्रीन पे देखा था. यू माइट फील दैट, राइट? द रीजन बीइंग लाइट का खेल. आई वर्क विथ अ पीसीआर हेड. पीसीआर इज प्रोडक्शन कंट्रोल रूम. पीसीआर हेड शी वाज शिरीन सेठी, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेडी. शिरीन मैम को मैं दूरदर्शन में एक मॉर्निंग शो करती थी, तब से देखती हूँ. मैं बोलती हूँ, मैम आप वैसे ही दिखते हो, मतलब ये है क्या? यू नो, एवरीबडी वांट्स टू लुक नाइस एंड यंग, राइट? तो मैम ने मुझे बताया, कुछ नहीं प्रतिभा, ये सारा लाइट का खेल है. लाइट का खेल है. सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू शुड कंडक्ट, हाउ यू शुड फेस कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिपोर्टर. ओके, व्हाट डू यू वेयर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. कुछ कलर्स है जिसको बिल्कुल नो. बेबी पिंक नो. कैमरा पे मायावती बहन जी जो पहनती है वो कैमरा पे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, कभी मत पहनो बेबी पिंक. ओके, लाइट येलो नो. लाइट येलो भी कैमरा पे अच्छा नहीं लगता है. ऑलराइट, लाइनिंग्स नो. स्मॉल चेक्स नो. Solid dark colors preferably, always, because you are ambassador of the production house you are working for or news channel you are working for. So have sober dress which will not distract attentions. Specifically girls के लिए वो फूल पत्ते वाले ड्रेसेस मत पहनो, जहाँ बिल्कुल वही है, और या फिर वो जिसमें आईने वाले योक्स हो वो मत पहनो. Do not wear anything that will distract your audience's attention from from your content to elsewhere. And preferably 3/4 या full sleeves are good. They look good on camera. Preferably I am saying. So dark colors, plain colors बहुत अच्छे दिखते हैं कैमरा पे. So what you wear, how you conduct yourself makes a difference. Now 16:9 रेशो में हमें देखना है, लाइट देखना है. गोल्डन लाइट में जहां पॉसिबल हो वहां शूट करना है. और जब हम ये सारी तैयारी करके पहुंचे हैं, वी नीड टू हैव अ स्टोरी लाइन इन आवर माइंड. अ रफ स्क्रिप्ट आपके माइंड में होना है. ओनली देन यू विल रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू व्हेन आई गो ऑन द फील्ड. Let's take the example of our खेतीहार वाली story. Now I have to think visually, how do I shoot it? क्या करेंगे हम लोग? What will you do? How will you start? How will you shoot? Tell me. How will you exactly start shooting this story? फार्मलैंड, कोई यंग फेलो है जो फार्मर है,
और उसने खेती में काम कर रहा है या फिर जा रहा है उसकी खेत में जा रहा है कुछ बांध के वगैरह। ओके, उसके वहां पे क्या करोगे जाके? गुड, वहां पे जाके क्या करोगे आप? उससे पहले बात करेंगे और फिर विजुअल्स लेंगे। ओके, अभी हमारी स्टोरी स्पेसिफिक है, कहाँ की है? अकोले या संगमनेर, जहां पे एक्चुअली सर्वे हुआ है। सो यू हैव टू गो टू ग्राउंड जीरो लोकेशन। ओके, अब हमें विजुअल थिंकिंग करना है कि हम क्या बोलने वाले हैं अपनी स्क्रिप्ट में। अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड दैट यू आर यूजिंग हैज टू बी जस्टिफाइड विथ अ मैचिंग विजुअल। ओके, सो संगमनेर या अकोले में जाना है। हाउ विल यू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एस्टैब्लिशिंग शॉट। जहाँ से जा रहे हो कि ठीक है बाय कार जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे संगमनेर का अगर बोर्ड Wonderful. फर्स्ट शॉट दैट विल good, right? Because even if you do not put a single line, people should understand what is happening, right? So संगमनेर का बोर्ड जहां लगेगा वहां. Now you are talking of over 3,000 young farmers, right? Young children of farmers. तो आपको क्राउड दिखाना जरूरी है. But as she said, she is right. He will find one person or two people जिसके साथ में ये हुआ है, जिनके एक्चुअली ये, which is called case study. Okay, and there are two formats of television script. Two formats, basic formats of television script, which we use for news day in and day out. There are number of formats, but most of your stories will go into two formats. One is P2G, P for Pratibha, TO, 2, Goa, G for Goa. Okay. P2G format. Another is ABC format. Any guesses what is P2G? गलत बताया तो भी चलेगा. Speak out. Yeah, what is P2G? Yeah. Public to ground. Good. Okay, random guesses चलेगा मुझे. Okay, random guesses चलेगा मुझे. There are two basic formats of television script. One is P2G, another is ABC. Okay, इसने तो P2G सम बताया. ABC क्या हो सकता है? What is ABC? कुछ भी बताओ चलेगा मुझे. No wild guesses? Okay. P2G is what? I told you one thing, like, specific is terrific. You are going, she said it very right, कि आप जाओगे कि कोई एक फार्मर का बच्चा चुनोगे, वो खेत में काम कर रहा है, वो शॉट लोगे आप, right? So what is that P2G format? P is what? You are choosing a particular case, right? Particular example, which will tell your story. So it will be particular to general. It is P2G format is particular to general. You are choosing a micro case study. If you are doing about, suppose, farmer suicide, what will you do? कि जिसके घर में अभी हाल ही में suicide हुआ है, that particular case study you will choose, right? So that is your particular element. फिर वो आप क्या करोगे? Suppose it is Pandurang Patil of संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, सपोज. तो आप लोग क्या करोगे? पांडुरंग पाटिल इज योर पर्टिकुलर केस स्टडी. यू विल विजुअली थिंक व्हाट विल एस्टैब्लिश हिज सुसाइड. ओके, डू नॉट रिक्रिएट एनीथिंग अनलेस योर चैनल टेल्स यू टू डू इट फॉर क्राइम शोज. क्राइम शोज में आपने रिक्रिएशन देखे हैं, बट न्यूज इज नॉन फिक्शन. You have to see and show what is actually happening. So your particular case study has to be very genuine case study. And then you will think कि यहाँ पे जाके मुझे कैसे shots लेना है. Okay? So shots कैसे लेना है? That it will establish everything. Now we are coming back to our story. Suppose the खेती हार वाली story.
You have, again let's take the case of पांडुरंग पाटिल, और पांडुरंग पाटिल का बच्चा है साहिल जिसकी शादी नहीं हो रही है. तो you will show that family working in farm. संगमनेर तहसील का है, एस्टेब्लिशिंग शॉट होगा, गांव के रैंडम शॉट्स होंगे, फिर आप उसका पांडुरंग पाटिल का परिवार है, साहिल है, ये सारे शॉट्स लेंगे. बिकॉज यू आर सेइंग ही इज अ फार्मर, यू हैव टू शो फार्मिंग एक्टिविटी, राइट. ये शॉट्स आपके दिमाग में होंगे. उसके बाद में आप बोलोगे कि पर्टिकुलर की आपकी ये शुरू हो जाएगी, फिर स्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी दिमाग में कि ये है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर तहसील का पांडुरंग पाटिल का परिवार. इनका बच्चा साहिल अब 34 साल का है, लेकिन पिछले 9 वर्षों की लगातार कोशिश के बावजूद उसको शादी के लिए कोई दुल्हन नहीं मिल रही है. इतनी सिंपल स्क्रिप्ट लिखना है आपको. इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं कि आप निकाल दो, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है. और स्क्रिप्ट राइटिंग की जो रूल्स है वो भी हम सीखेंगे. क्या नहीं यूज करना है, ऑनरिफिक नहीं यूज करना है, प्रेजेंट में बोलना है, फ्लो में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. डू नॉट क्लटर इट विथ टू मेनी आइडियाज. वन सेंट्रल लाइन एंड एक्सपांड इट वेल. ओके. और फिर आप बताओगे कि साहिल के लिए अब तक लगभग 90 से ज्यादा लड़कियां ये परिवार देख चुका है, लेकिन कहीं बात नहीं बनी. बहुत सिंपल सेंटेंसेस में आपने स्क्रिप्ट डाली, राइट, लेकिन बात कहीं नहीं बनी. इसकी वजह बताते हुए इसके पिता कहते हैं कि लड़कियां या किसान परिवार भी अपनी बेटी को दूसरे किसान परिवार में नहीं ब्याहना चाहते. ये हो गया आपका लिंकिंग सेंटेंस. क्योंकि आप जो ये विजुअल लगाओगे सारे, इसके साथ में आपके बी रोल्स चलेंगे, जिसे बैकग्राउंड रोल्स कहा जाता है. जो बैकग्राउंड शॉट्स चलते हैं, दे आर कॉल्ड बी रोल्स. अभी इसमें आप देखो, सोचो विजुअली क्या क्या लगेगा आपको. शॉट्स लगेंगे, रैंडम शॉट्स विच विल एस्टेब्लिश योर स्टोरी. एंड देन यू विल टेल ये लिंकिंग सेंटेंस कि इसकी वजह बताते हुए उसके पिता कहते हैं, शायद वो लड़का ना बोले, राइट. फिर वो बताएंगे क्या जो भी है. दैट इज कॉल्ड ए रोल. उनका जो ऑडियो रोल है, विच इज साउंड बाइट ऑफ द स्टोरी, विच इज ए रोल, विच इज साउंड बाइट. सो योर एवरी स्टोरी विच इज अ पैकेज स्टोरी, टेलीविजन रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी हम सोचेंगे, इज योर एंकर लिंक, 3 voice overs, minimum of 2 sound bites and 1 piece to camera. Those are very essential elements of your news story. Okay, very essential elements of your news story. अभी ये particular आपने बताया, you took up पांडुरंग पाटिल का परिवार as your P element, correct? Then आप उसका बाइट लगाओगे उसके पिता का, then you will go to general. पांडुरंग पाटिल की तरह केवल अकोले और संगमनेर तहसील में 3000 परिवार है जिनके घरों में बिन ब्याहे बेटे. गेटिंग इट? और ये बात तब सामने आई जब फिर वो व्यक्ति जिन्होंने या संस्था जिन्होंने सर्वे किया, उन्होंने सर्वेक्षण किया, और इनका कहना है कि ये बड़ी चिंताजनक बात है कि खेतीहार को दुल्हन नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 5.5 लाख से ऊपर है. अब ये सारा जो आप कह रहे हो उसको एस्टेब्लिश करने वाले शॉट्स चाहिए, विजुअल बी रोल्स चाहिए, आपको बैकग्राउंड रोल्स चाहिए. व्हाट विल दे बी देन? कि किसान परिवार का क्राउड है आपके पास में, करेक्ट, कई सारे किसान हैं, गांव है, गोटे हैं, ये है वो है, राइट. यू हैव टू थिंक विजुअली.